ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کو زہر دینے کا معاملہ، حالت تشویشناک۔ اچانک لائیو ٹیلی ویژن پر طیب ایردوان کی طبیعت کی خرابی اور غیر ملکی میڈیا کی بریکنگ نیوز۔ اب اس سارے کے سارے معاملے پر ترک حکومت کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے، اور اس میں بہت سے سوالات ہیں، کیونکہ ایک جانب ترکی میں انتخابات کی بازگشت ہے، انتخابات کا میدان سج رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب سال 2023 ہے۔ اس سال معاہدہ لوزان، ٹریٹی آف لیوزین، جو ترکی کو باندھے ہوئے ہے 100 سال سے، وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک انتہائی توانا آواز، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے طیب ایردوان اس کے اوپر نہ صرف بولتے ہیں بلکہ کھل کر بھی بولتے ہیں۔ اور طیب ایردوان ایک ایسا فگر ہیں جنہوں نے ترکیہ کو نئی بلندیوں پر بھی پہنچایا، اور ترکیہ کے اندر ایک مرتبہ پھر اسلام جو ہے اس کے حوالے سے اور مذہب کے فروغ کے لیے بہت کچھ کیا۔ آپ آیا صوفیہ کی مثال لے لیں، پوری دنیا نے اس پر چیخو پکار کی، لیکن اسے واپس مسجد میں کنورٹ کرنا، بہت سی ایسی چیزیں۔ اور طیب ایردوان سے ویسٹ جو ہے وہ بھی گاہے بگاہے ناراض ہی رہتا ہے، ترکیہ سے کوئی خوش نہیں ہے، اور بہت سے ایسے کام کیے جو ترکی کی خود مختاری کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ایک بغاوت کا بھی سر کچلا، فوجی بغاوت بھی۔ اور طیب ایردوان obviously ایک بڑا فگر ہے، کنٹروورسیز میں بھی گھرے رہتے ہیں، عالمی دنیا کو بھی کھٹکتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ having said that، طیب ایردوان جو ہیں ان کی پراسرار طور پر طبیعت خراب ہوئی، اور ظاہری بات ہے کہ پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر بھی دوڑی، اور اب جو پوری دنیا کا میڈیا ہے وہ کس طرح کی بریکنگ نیوز چلا رہا ہے، میں اس پر بھی آتا ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے بھی اس سارے معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ have just learned that President Erdogan of Turkey is unwell۔ مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ We are all praying for his health and wish him a speedy recovery. He has been one of the most prominent voices in support of Muslim causes and against Islamophobia۔ یعنی وہ مسلمانوں کے مسائل اور اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بڑی توانا اور پرومیننٹ آواز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی صحت یابی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ اب یہ بات بھی عمران خان صاحب نے کی۔ اب جو انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، میری عادت نہیں ہے کہ میں یہ جو کنٹروورسی کی کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں ان پر یقین رکھوں، یا پھر جو معاملات ہیں، لیکن یا پھر کوئی ایسی اسپیکولیشن کریٹ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے کروں، لیکن obviously اس اسپیکولیشن کے اندر ایک چیز آپ کو سمجھنی ہوگی، ایک معاملہ آپ کو سمجھنا ہوگا، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ طیب ایردوان کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا نے بہت سے جو ایسے چینلز ہیں پوری دنیا کے اندر، ایون رشیا کے چینلز جو ہیں، انہوں نے بھی یہی رپورٹ کیا کہ جی انہیں زہر دے دیا گیا۔ اب ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ منگل کی شام کو ترک صدر ہیں رجب طیب ایردوان، یہ مقامی ٹیلی ویژن چینلز کے ساتھ ایک براہ راست انٹرویو کر رہے تھے۔ یہ ایک لائیو انٹرویو تھا، سامنے 3-4 اینکرز بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ کچھ لائیو کلپس بھی میں آپ کے سامنے چلوا دیتا ہوں، ہم نے نکالے ہیں ریسرچ کر کے۔ یہ ان کے ساتھ لائیو ایک گفتگو کر رہے تھے، 4-5 اینکرز بیٹھے تھے سامنے بیٹھ کے، یہ انٹرویو دے رہے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے انٹرویو روک دیا گیا۔ براہ راست نشریات میں طویل وقفے کے بعد ترک صدر واپس آن ایئر آئے اور کہا کہ آج مہم میں بہت کام تھا، اس لیے مجھے گیسٹرائٹس ہو گیا، میں نے پروگرام منسوخ کرنے کا بھی سوچا، لیکن ہم واپس آ گئے ہیں۔ میں آپ سے اور اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں۔ تاہم اس طویل وقفے نے ناظرین کو تشویش اور تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی قیاس آرائیوں کے درمیان لوگ حیران تھے، اور لوگ جاننا چاہتے تھے کہ ترک صدر کے ساتھ کیا ہوا۔ اس دوران ترک صدارتی انتخابات میں حزب اختلاف کے واحد امیدوار جو کمال کلیچ داروغلو ہیں، انہوں نے بھی طیب ایردوان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ صدارتی ترجمان ابراہیم قالن نے اپنے آفیشل ٹویٹر پر بھی لکھا کہ ہمارے صدر خدا کا شکر ہے خیریت سے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے 14 مئی کو ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات سے چند ہفتے پہلے ہی طبیعت خراب ہونے پر اپنی انتخابی ریلیاں بھی منسوخ کر دی۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ وہ طبی ماہرین کے مشورے کے بعد ہی گھر پر آرام
आराम करेंगे। बाद पार्टी के नायब सरबराह एरकान कंदमीर ने कहा कि तुर्क सदर जुमेरात को वीडियो लिंक के जरिए जनूबी सूबा मरसीन में एक पावर प्लांट जो है, एटमी पावर प्लांट में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। घर से वो खिताब करेंगे जैसे खान साहब अभी करते हैं। मंगल के रोज तुर्क सदर ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि वो अपने पेट की खराबी की वजह से जो उनकी सेहत खराब हुई थी उसमें अब बेहतरी महसूस नहीं कर रहे थे और अभी भी उनकी तबीयत खराब है। और इस सब के अंदर कई अफवाहों ने सोशल मीडिया पर जन्म लिया। ट्विटर सार्फिन कयास आराइयां कर रहे हैं कि तैयब एर्दोआन जो हैं उन्हें जहर दिया गया है। कई सार्फिन ने यह भी कहा कि इस बात की तहकीकात भी हो रही हैं कि आया रूसी एहलकार से मुलाकात में तो एर्दोआन को जहर नहीं दिया गया। ताहम ये कयास आराइयां ही हैं, कोई हतमी रिपोर्ट इस हवाले से सामने नहीं आई। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश हुई और यह बात सामने आई कि जी हर तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एक रशियन ऑफिशियल से तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोआन वो मिले। और इस सब के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि दूसरी साइड से जो मौकफ आ रहा है कि जी रूसी हुकाम से मिलने की पादाश में, जैसे रशिया का दौरा करने की पादाश में खान साहब के साथ जो हुआ, तो ये भी एक सोशल मीडिया पर थ्योरी चल रही है। और मैं सिर्फ इन्हें थ्योरीज के हद तक कहूंगा बिकॉज नन ऑफ दीज आर कंफर्म्ड रिपोर्ट्स, दीज आर अनकंफर्म्ड रूमर्स जो चले। अच्छा, अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जी रशियन हुकाम से मिलने की पादाश में इन्हें जहर दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल मुंतकिल हुए। यहां तक बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन ये भी बात कर रहे हैं कि तैयब एर्दोआन जो हैं वो इस सारे मामले के अंदर जो उनकी सूरत हाल है वो तशवीशनाक बताई जा रही थी और बड़े मुश्किल मामलात थे। और इस वक्त जो सूरत हाल है आप ये देख लें कि एक वारतॉक डिफेंस है जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि रूस का कोई जासूस है, रशियन स्पाई है जिसने रजब तैयब एर्दोआन को जहर दिया। ये वो क्वेश्चंस उठा रहे हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चंस उठाते हैं तो आप एक कॉन्स्पिरेसी को जन्म देते हैं, एक डिबेट को स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने ये खबर है, ये MMM न्यूज़ है उसकी है और इसने लिखा कि हैज टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोआन बीन पॉइजन्ड, यानी क्या उन्हें जहर दिया गया है। अच्छा, और इस सब के अंदर और भी बहुत से हैं जी। इंडिया टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया और वंदे भारत एक चैनल है इंडिया का, उन्होंने भी कहा कि एर्दोआन बीइंग पॉइजन्ड। और इससे पहले गार्डियन की एक खबर है मेरे पास, वो आई है 2015 की। 2015 में रजब तैयब एर्दोआन के हवाले से हमने रिसर्च करके खबर निकाली है। 3 मार्च 2015 की गार्डियन जो कि बरतानवी जरीदा है, तकरीबन ये 8 साल से ज्यादा पुरानी खबर है। उस वक्त भी एक इस तरह की खबर सामने आई थी और इस सब के अंदर बताया गया एर्दोआन्स मील्स टेस्टेड फॉर पॉइजन अमिड सिक्योरिटी फियर्स, यानी तैयब एर्दोआन की जो मील्स हैं, उनके खाने हैं, उन्हें टेस्ट किया जाता था क्योंकि ये खदशा था कि उन्हें जहर दिया जा सकता है। आपको पता है कि इसी तर्ज का एक दावा खान साहब ने भी किया है कि जब वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ तो अभी रीसेंट दावा है और उस वक्त हमने ये खबर दी थी, बहुत से लोगों ने कहा आप स्पेकुलेशन क्रिएट कर रहे हैं कि जी शौकत खानम में जब खान साहब का इलाज हो रहा था अभी रिसेंटली, तो उनके साथ वहां पे जी मशकूक बंदा दवाइयों का पूछ रहा था कि कौन दवाई देता है कौन नहीं। उस वक्त भी अब खान साहब ने कहा कि उन्हें भी पॉइजन करने की कोशिश की गई। अब यहां पे 2015 की जो खबर है उसमें तैयब एर्दोआन के पर्सनल डॉक्टर ने कहा कि जी आजकल सिर्फ बुलेट्स नहीं है, आजकल सिर्फ गोलियां नहीं है जिनसे प्रोमिनेंट फिगर्स को एलिमिनेट किया जाता है, आजकल और बड़े रास्ते होते हैं, जिस तरह खान साहब भी इस हवाले से बहुत मर्तबा जिक्र कर चुके हैं। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, ये एक मामला है जो सामने आता रहा। अच्छा, अब हुआ क्या है कि अब से कुछ देर पहले रजब तैयब एर्दोआन टीवी पर पहली मर्तबा सामने आए हैं जब से उनकी तबीयत खराब हुई है उसके बाद से। और इस वक्त टर्की जो है वो यही मौकफ दे रहा है कि जी उन्हें वो बीमार हुए हैं, जरूर उनकी सेहत खराब हुई है, लेकिन इसमें जो जहर का आंसर है वो नहीं इसमें किसी भी सूरत शामिल। और अब से तकरीबन व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो उससे तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने एक न्यूक्लियर तवानाई के प्रोजेक्ट की आला सतह तकरीब में शिरकत की और इस सब के अंदर उन्होंने अपनी जहर खुरानी या बीमारी से मुतल्लिक जो अफवाहें हैं उन्हें भी दफन कर दिया। मैं समझता हूं इस तरह की अफवाहें इसलिए भी फैलाई जाती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। चले हम न्यूट्रल एनालिसिस कर लेते हैं ना। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्टेट्स ऐसी बातें फिर दबा जाते हैं और फिर बस उसकी तहकीकात इंटरनली होती हैं। दूसरा ये भी है कि इसमें दूसरी साइड का मौकफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया का मीडिया क्यों ये खबरें लगा रहा था, क्यों ये नैरेटिव बन रहा था, क्या तैयब एर्दोआन को कमजोर शो करना इसके अंदर मकसद था, क्या टर्की के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करना इसका मकसद था। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन उनकी बीमारी अगर कोई तवील बीमारी है उस हवाले से भी अफवाहें दम तोड़ गई जब रजब तैयब एर्दोआन टीवी पर आए। सदर रजब एर्दोआन जो है तंदुरुस्त
तंदुरुस्त हैं और सरकारी उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। नायब सदर फवाद ओक्ताई ने कहा कि सदर एर्दोआन अपने उमूर सर अंजाम देते रहेंगे, उनका शेड्यूल बहुत मसरूफ है। उन्होंने कहा कि सदर एर्दोआन खुद कह चुके हैं कि उनको मामूली सी सर्दी महसूस हुई थी, जिसकी बिना पर उन्होंने आराम करने को तरजीह दी। सदर रजब तैयब एर्दोआन की सेहत से मुतल्लिक मुतअद्दिद गैर मुल्की मीडिया इदारों में दी जाने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं, यानी ये खबरें फेक और फैब्रिकेटेड खबरें हैं। सदर एर्दोआन ने कल खराबी सेहत की बिना पर अपने प्रोग्राम मंसूख कर दिए थे और डॉक्टर्स ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो आराम करें। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान उमर चलक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में कहा है कि सदर एर्दोआन के बारे में मुतअद्दिद गैर मुल्की मीडिया में गैर इखलाकी और बेबुनियाद खबरें चलाई गई हैं। सदर एर्दोआन अपने उमूर अंजाम दे रहे हैं। सदर एर्दोआन डॉक्टरों के मशवरे पर काम कर रहे थे और उमर चलक ने पूरी दुनिया की जानिब से सदर एर्दोआन की सेहत और तंदुरुस्ती की नेक ख्वाहिशात पर पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो मैं ये समझता हूं ये खबर आपके सामने रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें और बहुत से एंगल्स हैं जिन्हें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और इस सब में उन्होंने ये रूमर्स जो हैं डिनाई किए हैं, लेकिन जाहिर बात है जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि समटाइम्स ऐसी न्यूज जो होती हैं उन्हें छुपाया भी जाता है और जाहिर बात इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स सारी कभी कभी गलत नहीं भी होती, वो भी एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। लेकिन 2023 में तुर्की जो है वो सिर्फ सदारती इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहा। तैयब एर्दोआन ने ये सदारती इंतखाबात जीतने हैं जो अगले महीने होने हैं और उसके बाद इसी साल वो 100 साल पुराना 1923 का मुआहिदा लूजान, ट्रीटी ऑफ ल्यूजेन, जिसने तुर्की को बांध के रखा हुआ, मफलूज किया हुआ है, तुर्की को अपाहिज बना दिया गया था, वो मुआहिदा खत्म हो जाना है। और तैयब एर्दोआन तो पहले से तैयारी में बैठे हुए हैं, वो तो पिछले 2-3 साल से कमर कस के बैठे हैं, वो स्टेज सेट कर रहे हैं कि ट्रीटी ऑफ ल्यूजेन जो कि हुई थी स्विट्जरलैंड के शहर ल्यूजेन में, वो खत्म हो और फिर हम अपने मुल्क को मजीद अजमतों पर लेके जाएं। टर्की अपने पोटेंशियल का 5% भी उस ट्रीटी की वजह से नहीं वो कर पा रहा, उसे एक तरह से कैश नहीं कर पा रहा अपने पोटेंशियल को। आप अंदाजा नहीं कर सकते टर्की इन सारे वेस्टर्न ममालिक की ये जो चौधराहट है उसे कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और वो भी तैयब एर्दोआन को जाहिर बात है इस सब के अंदर वो सब अपना खतरा भी समझते हैं। तो अल्लाह ताला तैयब एर्दोआन जो है उनकी हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह खान साहब ने कहा कि मुसलमानों के लिए हमें तो यही मैटर करता है ना कि हमारे अब जो वादी कश्मीर का मसला है उस पर बात करते हैं, हर चीज़ पर बात करते हैं, तो हम तो इस चीज़ का रिगार्ड करते हैं और जहां जहां मुसलमानों के साथ जुल्म होता है उस पर वो बात करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।